Good evening. Welcome to Women's Day month-long celebrations. Yoga sessions are always started with prayer. May I request Radhika madam to recite the prayer, please? Thank you, madam. I request everyone to sit comfortably. Close your eyes gently. First, we start with 3 Omkar chantings. Take a deep breath. Om. 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavasishyate. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Rub your palms. Gently cup your eyes. And slowly open your eyes. Thank you. Thank you, Radhika madam, for the prayer. Namaste everyone. I am Shubhada from Aram Yoga Institute. Good evening. A very warm welcome to all of you for this yoga session on the occasion of International Women's Day 2023. Women are competent, dynamic at work, versatile, successful, and above all caring and affectionate. They are the super glue that hold many pieces of life together. While maintaining work-life balance, women get stretched and stressed. While they look after everyone around them, who looks after them? Keeping this question in mind and special occasion of Women's Day 2023, Aramba Yoga Institute is celebrating whole month of March as International Women's Day 2023 by organizing a series of yogic practices and knowledge sessions conducted by yoga sadhaks. To begin with, I would like to give some insights about Aramba Yoga Institute. Aram Yoga Institute, Kandivali, Mumbai is an ISO 9001 certified institute with an international standards recognition of Yoga Certification Board under Ministry of Ayush and is running as an educational wing of Aram Yoga Foundation, a public charitable trust registered under Bombay Charitable Trust Act. Aram Yoga Institute is a trusted yoga institute who work to enlighten the world, especially young aspirants with quality education, training, and guidance in yoga teaching profession. We introduce them to the real essence of yoga and benefits of introducing and applying yogic principles and practices to their lifestyle. It results in improved balance of an individual on multiple aspects of life, hence creating a better society. Now, let me share the other major activities being conducted at Aram Yoga Institute. Regular yoga classes every day early in the morning, late morning, and late afternoon on various days. Advanced yoga, power yoga, society yoga, corporate yoga, partner yoga, pregnancy yoga class under the guidance of a
yoga expert, and a doctor. Aram Yoga is also conducting professional certification courses like yoga teachers training courses and preparation courses for YCB, that is Yoga Certification Board, from level 1 to level 4. We also conduct the coaching and guidance program towards UGC NET or JRF exam preparation. Let me share few words about the force behind Aram Yoga Institute Director Sushma Maurya Madam. She is a qualified professor awarded by University Grant Mission, UGC NET, India. Her educational qualifications are MA in Education, MA in Yoga Shastra, post-graduation graduate diploma in Yogic Science, foundation course in Yoga, Madhyama Yoga Shiksha teacher training course. She has been honored with Yoga Shri Award by Indian Young Olympian Federation and Patanjali College of Yoga and Research Center. Sushma Madam is certified yoga teacher for all 4 levels and the lead yoga examiner of Yoga Certification Board, which comes under Ministry of Ayush, Government of India. That's not all. She is a karate champion holding black belt. Before starting the Aram Yoga Institute for imparting ancient knowledge of yoga for the benefits of our society, she has served to various celebrities and well-known personalities of different walks of life. She has been working in association with various renowned institutes, corporates, schools, NGOs, gymkhanas, clubs for more than 15 years. Sushma Madam takes Aram Yoga Institute as a medium to inspire and encourage young generation to consider yoga teaching as a mainstream profession. She aspires to take this holistic health resource to every home to make it our life's integral part. So let's begin our today's yoga session on menopause. Over to Deepali ma'am. Deepali ma'am's introduction. It's my privilege and honor to introduce Deepali Joglekar madam, who will be taking us through today's yoga session on menopause. She has joined online from Borivali, Mumbai in Maharashtra. Her educational qualification is Bachelor of Commerce. She is yoga teacher and practitioner, having completed level 3 yoga teacher and evaluator course of Yoga Certification Board. She has also done certificate courses in Power Yoga, Sukshma Vyayam, Prenatal, Postnatal and Garbha Samskar. Without any further ado, may I request Deepali Joglekar madam to take over and guide you all on today's yoga session, menopause. Happy Women's Day, happy learning, stay fit, stay safe. Over to Deepali madam. Thank you, everyone. Thank you, Shubhadaji, for such a nice introduction. Thank you, Sushma Madam, Vishnu Sir, for giving me this opportunity. And thanks all of you who joined today. आज मैं आपको मेनोपॉज के बारे में बताने वाली हूँ. Full highlight, full screen. Full screen. Okay, visible properly? Okay, thank you. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. Yoga for menopause. Menopause, ये शब्द जब भी हम लोग सुनते हैं तभी मन में एक्चुअली बहुत सारे ख्याल आते हैं कि एग्जैक्टली मेनोपॉज में क्या होता है. हार्मोन्स
मतलब प्रॉपरली नहीं होते हैं, हॉट फ्लशेस होते हैं, मेंटल सिम्टम्स कुछ रहते हैं, फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं, इतना अफेक्ट हो जाते हैं कि फैमिली भी अफेक्ट हो जाती है हमारी सिम्टम्स की वजह से। तो एग्जैक्टली ये क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। आज मेनली आज के प्रेजेंटेशन में, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मेनोपॉज डेफिनेशन, phases in woman life, hormonal changes in menstrual cycle, symptoms of menopause, health issues after menopause, and role of yoga in menopause. और फिर लास्ट में एक 15 मिनट हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन, थोड़ा सा एक्सरसाइज मीन्स योगा आसन्स करने वाले हैं। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ मेनोपॉज। Menopause is a Greek word. Meno means menses, month, and pause means stop or cease. Menstruation का stop हो जाना, रुक जाना, ये menopause कहलाता है। As per World Health Organization, natural menopause is deemed to have occurred after 12 consecutive months without menstruation, for which there is no other obvious physiological or pathological cause, and in the absence of clinical intervention. Natural menopause हम कह सकते हैं कि जब भी 12 मंथ्स विदाउट, मतलब नेचुरली अगर 12 मंथ्स पीरियड आना बंद हो जाएंगे, तब ये कह सकते हैं कि वो लेडी मेनोपॉज के फेज में आ गई है। It is one of the milestones in woman's life. Menopause कोई disease नहीं है। End of reproductive years on an average occurs at the age between 45 to 55 years. Menopause is caused by the loss of ovarian follicle functions and a decline in circular blood estrogen level. जब भी हमारा ओवरियन फॉलिकल फंक्शंस कम हो जाता है, बंद हो जाता है, और इस्ट्रोजन लेवल जब भी ड्रॉप हो जाता है, तब हम मेनोपॉज फेज की तरफ बढ़ते हैं। फेजेस इन वुमेन्स लाइफ: मेनार्चे, menstrual cycle, and menopause. Menarche is menstruation, जब भी फर्स्ट टाइम किसी लड़की को पीरियड आ जाता है, that is called menarche, and the last menstruation is menopause. बीच में हर मंथ ये मेंस्ट्रुएशन का साइकिल चला रहता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में, the menstrual cycle is the regular natural cycle that occurs in the female reproductive system that makes pregnancy possible. The cycle is required for the development of follicles and for the preparation of uterus for pregnancy. ये जो हमारा menstruation है, पीरियड से मेनली हमारे प्रेगनेंसी को हेल्प करता है। और जब हम मेनोपॉज में आ जाते हैं, मेनोपॉज के फेज में आ जाते हैं, मतलब क्या होता है कि हमारा फर्टिलिटी है वो बंद हो जाता है। अच्छा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल एग्जैक्टली हार्मोनल चेंजेस क्या होते हैं वो हम अभी देखेंगे। ये जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स, पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, एफएसएच एंड एलएच, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, एंड ओवरी से सिक्रीट होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये जो एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये जो चार हार्मोन्स है वो मेनली हमारे पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीट होता है जीएनआरएच, उसका काम सिर्फ इतना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फॉर्म करना एफएसएच एंड एलएच को सिक्रीट करने के लिए, बस उतना ही वो काम करता है।
अभी लेफ्ट साइड आप चार्ट देख रहे हैं हार्मोन्स लेवल का, और राइट अपर देख रहे हैं यूट्रस एंड ओवरीज। राइट एंड लेफ्ट दो ओवरीज है एंड यूट्रस है। ओवरी में फॉलिकल, बहुत सारे फॉलिकल होते हैं, लेकिन एट ए टाइम एवरी मंथ सिर्फ एक ही फॉलिकल डेवलप होता है। ये फॉलिकल डेवलप होने का काम FSH करता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। FSH फॉलिकल डेवलप करने का काम करता है। ये डेवलपमेंट या ये मैच्योर का प्रोसेस है, ये 8 to 10 to 12 डेज में वो मैच्योर हो जाता है। मीनवाइल लेफ्ट साइड आप नीचे देखेंगे, ये जो यूटेराइन लाइनिंग वॉल है इसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। तो ईस्ट्रोजन है वो एंडोमेट्रियम को डेवलप करने का काम करती है। वही 12 to 14 डेज में ये एंडोमेट्रियम थिक हो जाता है, या यूटेराइन वॉल है वो थिक हो जाती है। अभी ओवरी से फॉलिकल डेवलप हो गया तो वो बर्स्ट होके एक यूट्रस में आ जाता है। ये कौन करता है? तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स है वो फॉलिकल को बर्स्ट करता है, और जो एग है वो रिलीज होके यूट्रस में आ जाता है। अगर वहां पे 24 आवर्स में फर्टिलिटी हो गई तो गर्भ को प्रोटेक्ट करने का काम ये यूट्राइन वॉल है वो करती है। अच्छा, ये यूट्रस में आ गया, तब तक प्रोजेस्टेरॉन, ओवरी से प्रोजेस्टेरॉन भी सीक्रेट होना चालू हो जाता है। इधर आप देखेंगे लेफ्ट साइड में, जब ही ये रिलीज होके एक आ गया यूट्रस में, वो टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो गया, सॉरी LH प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हो गया है, तो वो वॉल को थिन नहीं होने देता। अगर प्रेगनेंसी रही तो गर्भ को प्रोटेक्ट करने का काम यूट्रस का वो यूटेराइन वॉल करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं रही तो फॉलिकल डिस्कार्ड हो जाता है और वजाइना से नीचे आ जाता है। उसके साथ में यूटेराइन लाइनिंग भी शेड हो जाती है और हमें पीरियड्स आ जाते हैं। अच्छा, अभी हम लोग ने देखा कि फर्स्ट डे जब भी फर्स्ट पीरियड आता है तभी मेनार्चे, फर्स्ट पीरियड को मेनार्चे कहते हैं, लास्ट पीरियड है उसे मेनोपॉज कहते हैं। लेकिन ऐसे होता है क्या कि लास्ट पीरियड हो गया और अचानक से पीरियड्स बंद हो गया? तो ऐसे नहीं होता है। विथ द एज हमारे फॉलिकल्स कम डेवलप हो जाते हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल धीरे धीरे सीक्रेट होना कम हो जाता है, और जो उसकी वजह से हमारे पीरियड्स भी फिर पहले जो मंथली चलते थे अभी 2-3 महीने बाद आएंगे, फिर 5-6 महीने बाद आएंगे। ऐसे कर करके जब भी पूरा 1 साल अगर पीरियड्स नहीं आए तो हम ये कह सकते हैं कि वो लेडी मेनोपॉज फेज में पहुंच गई है। तो फेजेस, मेनोपॉज के फेजेस अभी मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज, दोनों में से एक ही आएगा। जो हम लोग ने डेफिनेशन में देखा था मेनोपॉज के कि नेचुरल वे में जब भी मेनोपॉज आ जाता है, नेचुरल वे से जब भी 12 मंथ 1 साल नहीं आते हैं पीरियड्स तो हम उसे मेनोपॉज कहते हैं। तभी अगर मतलब जो हार्मोन्स है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो मतलब
सिम्टम्स की जो डिस्टर्ब होते हैं उसकी वजह से फिजिकल मेंटल सिम्टम्स हमें दिखते हैं। अगर वो नहीं दिखे, कुछ अदर कॉजेस है, अगर केमो है या कुछ नेचुरल वे से अगर पीरियड्स बंद हो गया, नेचुरल वे से नहीं हो गया, तो इट इज कॉल्ड प्री मैच्योर मेनोपॉज। अगर सिम्टम्स दिखे, मेनोपॉज रेफर्स टू द पीरियड if these symptoms are first observed and end after 1 year of the final menstrual period। ये जो सिम्टम्स है वो मेनोपॉज के बाद भी 1 साल तक चले रहते हैं, हम एक्सपीरियंस करते हैं। पोस्ट menopause is the time after menopause when a woman hasn't experienced a period for over 1 year. Post menopause, you will no longer have periods, but some women do continue to experience symptoms of menopause. Premature menopause थोड़ा विस्तार में देखते हैं अभी। Some causes of early or premature menopause: chemotherapy or radiation to treat cancer। अगर केमोथेरेपी हुआ हो या फिर सर्जरी कुछ हुआ हो, आपका यूट्रस ओवरीज निकाला हो, या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ मेनोपॉज एट एन अर्ली एज, आपके फैमिली हिस्ट्री में किसी को अर्ली एज में ही मेनोपॉज आया हो तो आपको भी आ सकता है, उस लेडी को भी आ सकता है। गेटिंग योर फर्स्ट पीरियड बिफोर एज 11, अगर मेनार्चे जल्दी हुआ तो हो सकता है मेनोपॉज भी जल्दी आ जाए। Autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, thyroid disease, तो उसकी जो ट्रीटमेंट होती है उसकी वजह से भी मेनोपॉज आ सकता है। स्मोकिंग सिगरेट, हैविंग HIV और एड्स, ये प्री मैच्योर मेनोपॉज के कुछ रीजंस है। पेरीमेनोपॉज refers to the period from when the signs are first observed and end 1 year after the final menstrual period। अभी ये symptoms क्या है? फर्स्ट फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखते हैं। मेनली हमारा FSH LH लेवल बढ़ जाता है और इस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल है वो कम हो जाता है। ये आप इस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल विथ एज मैंने साइड पे जस्ट दिखाया है आपके लिए। TSH लेवल जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है उसका लेवल में फ्लक्चुएट हो जाता है, मोस्टली इंक्रीज हो जाता है, थायराइड हो सकता है। विटामिन D में डिक्रीज, एंड्रोजन लेवल ड्रॉप्स डाउन। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स: मूड स्विंग्स हो जाना, फटीग, थकान महसूस करना, डिप्रेशन, एंजाइटी, डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग, प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेशन हो ना पाना, मेमोरी लैप्सेस। कभी कभी ऐसे होता है कि हम लोग ने एक चीज रखी है, फिर 10 मिनट के बाद हम ही भूल जाते हैं कि अरे कहाँ पे रखा था, या फिर फ्रिज खोला फिर ध्यान में नहीं आता है कि अरे मैंने फ्रिज क्यों खोला था। तो ये जो चीजें है वो पेरीमेनोपॉज की सिम्टम्स में आ जाते हैं। लेस इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी, ये मेनली एंड्रोजन लेवल ड्रॉप्स नीचे जाता है, उसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट कम हो जाता है। फिजिकल सिम्टम्स: वेट गेन होना, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स। हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स मेनली हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ता है तभी ये हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स होता है। वैजिनल ड्राइनेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, प्रॉपरली स्लीप नहीं हो पाती है, 2-3 घंटे में उठ जाते हैं। ब्लोटिंग, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ जाता है, पेट थोड़ा सा ऐसे भरा सा लगना, लॉस ऑफ बोन डेंसिटी, ड्राई हेयर और हेयर लॉस। इस्ट्रोजन लेवल जो है हमारा पीरियड्स में, जो इस्ट्रोजन लेवल
जो काम करता है ना, वो मेनली हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर आप देखें, मतलब हम लोग अगर रेशो देखें लेडीज और जेंट्स का हार्ट अटैक के, तो लेडीज को जो मतलब 60 या 50, 30 to 50 के एज में अगर हार्ट अटैक के रेशो देखे तो लेडीज के रेशो बहुत कम है। अगर प्रपोर्शन चेक करें तो जेंट्स का बहुत ज्यादा है, क्योंकि वजह है इस्ट्रोजन लेवल। इस्ट्रोजन लेवल हमारे हार्ट को स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। अभी इस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप हो गया तो ऑटोमेटिकली जो कार्डियोवास्कुलर डिसीज है उसकी रिस्क थोड़ी बढ़ती है। ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए या होते ही की है, लेकिन उसका रिस्क बढ़ता है। वैसे ही बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। जैसे ही इस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है, बोन डेंसिटी भी कम हो जाती है। पोस्ट मेनोपॉज, जो पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स है वो भी कभी कभी 1 साल तक, मतलब पीरियड्स खत्म होने के बाद भी 1 साल तक चले रहते हैं। और मेनोपॉज आने के बाद मेनली हमारी फर्टिलिटी बंद हो जाती है, क्योंकि फर्टिलिटी बंद हो जाती है तो पीरियड्स का कुछ काम ही नहीं है। इस्ट्रोजन जैसे लेवल बंद हो जाएंगे तो हमारे पीरियड्स बंद हो जाते हैं। ये एक मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया का दिल्ली का एक आर्टिकल मिला था, वो एक मैंने आपके लिए शेयर किया हुआ है। पोस्ट मेनोपॉज हेल्थ इश्यूज का, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, जो मैंने अभी अभी आपको बताया कि इस्ट्रोजन लेवल जैसे ही कम होता है कार्डियोवास्कुलर डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स डेंसिटी कम हो जाती है। अगर उसमें आपका विटामिन डी भी कम हो तो फिर फ्रैक्चर हो जाना, मतलब छोटा सा भी किधर भी गिरे तो भी, मतलब बहुत धड़ाम से नहीं गिरे तो भी आपको फ्रैक्चर हो जाता है। कैंसर की रिस्क, अगर अपने हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपका लंबा दिन तक या ज्यादा दिन तक चला हो तो कैंसर की रिस्क, जो ओवरियन कैंसर है उसकी रिस्क बढ़ सकती है। डिप्रेशन डिसऑर्डर्स, फिर डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, स्लीप डिसऑर्डर्स एंड लास्ट में डिमेंशिया, फॉरगेटफुलनेस। डिप्रेशन मेनली आपको इसके लिए भी आ सकता है कि उसके पेरीमेनोपॉज के सिम्टम्स में आपका वेट गेन होता है, आपको स्लीप आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, फटीग, थक जाते हो, तो आप मतलब आपका पूरी क्षमता से आप अपना काम नहीं कर पाते हो, तो आपको फिर वो अरे मैं नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रही हूँ करके आपको वो डिप्रेशन आ सकता है। अभी ये हो गया मेनोपॉज के बारे में, सिम्टम्स देखा आपने, हेल्थ इश्यूज क्या है वो देखे। अभी योगा का रोल देखेंगे हम इसमें कि योगा का रोल क्या है। योगा कैन हेल्प टू मैनेज द फिजिकल एंड psychological symptoms that many women experience during the transition from perimenopause to menopause. It can also improve their long-term physical and mental health in post-menopause. Yoga can help retain muscle flexibility, general mobility, and balance. Just benefit मैंने थोड़े शेयर किए हुए हैं। योगा से मेनली स्ट्रेस रिड्यूस होने में मदद होता है, स्लीप इंप्रूव होने में मदद होती है, मेनोपॉज सिम्टम्स रिलीव करने में, ईज करने में मदद होते हैं, सच एज हॉट फ्लैशेस है, जॉइंट मसल्स एक्स है। योगा में ऐसे कुछ कूलिंग आसन या कूलिंग प्राणायाम है, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। Rebalance your emotions, mood swings, anxiety, restores depleted energy caused by insomnia, fatigue, थकान या फिर अनिद्रा की वजह से अगर आपको थकान सी महसूस हुई है,
एनर्जी आपका लो हो गया है, तो योगा आपकी वो एनर्जी रिस्टोर करने में मदद करता है। रीजनरेट अ स्लगिश मेटाबॉलिज्म, tone and strengthen muscles, build bone density, balance and boost heart health, reinforce positive thoughts and improve self-esteem। जब भी आपका स्लीप प्रॉपरली हो जाए, आपके सिम्टम्स थोड़े से रिलीज होने में मदद हो जाए, तो अपने आप आपको वो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मैं प्रॉपरली मेरा रूटीन लाइफ मैं बिता सकती हूँ। सिर्फ योगा से काम नहीं चलेगा, आपका ऑफिस स्ट्रेस लेवल, मतलब आप स्ट्रेस लेवल कितना लेते हो, या फिर आपका डाइट प्रॉपर है क्या, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, उसके ऊपर भी ये सिम्टम्स निर्भर करते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रेस लेवल, मतलब स्ट्रेस आपको बहुत हो, या फिर आप या फिर आप लाइफस्टाइल रूटीन लाइफस्टाइल नहीं हो किसी भी वजह से, मतलब शिफ्ट है, वर्क शिफ्ट है या और कुछ भी, तो सिम्टम्स अगर सीवियर है तो आपको मेडिकल हेल्प लेनी ही चाहिए। तो फिर योगा आपको क्योर करने में मदद करेगा, लेकिन आपको मेडिकल हेल्प कभी लेनी ही चाहिए। अच्छा ठीक है, अभी आपने तय कर लिया नहीं इतने सारे मुझे बेनिफिट्स हो रहे हैं, अभी मैं योगा कर लूं। हाँ, तो योगा अगर करना है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन हमें फॉलो करना पड़ेगा। पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म। योगा करने से पहले, मतलब अगर एम्प्टी स्टमक हो, आपका बॉवेल क्लियर हो, आपने रेस्ट प्रॉपर हो लिया हुआ हो, डिनर राइट हो, और पॉजिटिव अप्रोच विदाउट एनी डिसलाइक। पॉजिटिव अप्रोच मतलब आप ये शक नहीं करना चाहिए कि मुझे योगा से फायदा होगा नहीं होगा। अगर आप पॉजिटिव अप्रोच रखोगे तो आपको बेनिफिट होना ही है। प्रधान कर्म, जब योगा करते हैं तो पहले सूक्ष्म क्रिया, दैट इज हम लोग वार्म अप एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो वैसे ही सूक्ष्म क्रिया, फिर आसन, सूर्य नमस्कार, फिर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दैट इज कूलिंग एक्सरसाइजेस, देन लास्ट में प्राणायाम एंड शवासन। पश्चात कर्म, आसन प्राणायाम, अगर हम लोगों ने योगा सेशन हो गया हमारा, तो उसके बाद तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। सूर्य नमस्कार और आसन से हमारी एनर्जी बढ़ती है, उसके साथ में बॉडी में हीट थोड़ा बढ़ जाता है, तो तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। अवॉइड ऑयली फूड एंड मोर टेक मोर लिक्विड। कुछ आसन में बेनिफिट्स, मतलब सिम्टम्स, और वो आसन प्राणायाम जो वो सिम्टम्स को रिलीज करने में मदद करेंगे, उसका चार्ट शेयर किया हुआ है। स्ट्रेस एंजाइटी के लिए फॉरवर्ड बेंडिंग आसन, जैसे कि उत्तानासन हो, पश्चिमोत्तानासन हो, बालासन इज चाइल्ड पोज, शवासन, सुखासन, और प्राणायाम में अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, ओमकार चैंटिंग, ये हमारे स्ट्रेस को, एंजाइटी को रिलीव करने में मदद करता है। हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स, ये मैंने कहा आपको बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से होता है, तो डाउनवर्ड फेसिंग डॉग जो वापिस थोड़ा कूलिंग करने में मदद करता है। सुप्तबद्ध कोणासन, लेग्स अप द वॉल, प्राणायाम, कूलिंग प्राणायाम लाइक शीतली, शीतकारी, चंद्र भेदन, ये हमारे बॉडी को कूल करने में मदद करता है, और हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट्स को थोड़ा सा रिलीव करने में मदद करता है। कंसंट्रेशन एंड मेमोरी, बैलेंसिंग आसन्स लाइक वृक्षासन, वॉरियर 3, भ्रामरी, त्राटक, ये कंसंट्रेशन के लिए अच्छा है।
मेडिटेशन, मंत्र चांटिंग, ये हमारे कंसंट्रेशन मेमोरी को बढ़ाने के लिए मदद करता है। ईस्ट्रोजन लेवल कम होने से हम लोग ने देखा कि बोन डेंसिटी कम होती है। अगर आप शुरू से ही स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटीज कर रहे हो तो मेनोपॉज मतलब पेरीमेनोपॉज में उतना इफेक्ट नहीं आएगा अपने बोन पे। तो स्ट्रेंथनिंग के लिए कौन से एक्सरसाइजेस है? सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार तो एक्चुअली एक पैकेज ही है जो हमारी ओवरऑल हेल्थ रखने में मदद करता है। वॉरियर पोजेस, त्रिकोणासन, सेतु बंधासन, बैक बेंडिंग आसन जो हार्ट को स्ट्रेंथ करने में मदद करते हैं, हमारी हार्ट को स्ट्रेंथ, लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। धनुरासन है, चक्रासन है, ये जो बैक बेंडिंग आसन है वो मेनली हमारे स्पाइन को स्ट्रेंथ करते हैं और लंग्स कैपेसिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। वेट गेन होता है तो उसके लिए सूर्य नमस्कार तो है ही, चक्की चालन क्रिया, दंडासन दैट इज प्लैंक होल्ड, पश्चिमोत्तानासन जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग आसन जहाँ पे आपका एब्डोमेन पूरा स्क्वीज हो जाता है तो वो टोन होने में मदद हो जाता है। मैंने थोड़े से आसन्स और सूर्य नमस्कार के पिक्चर्स यहाँ पे शेयर किए हुए हैं। चाइल्ड पोज, ब्रिज पोज, सेतु बंधासन, ये लेग्स ऑफ द वॉल, ये वॉरियर का एक वेरिएशन है, ये माउंटेन का एक वेरिएशन है, पर्वतासन का एक वेरिएशन है, फॉरवर्ड बेंडिंग लाइक जानुशीरासन, सूर्य नमस्कार 12 स्टेप्स, सूर्य नमस्कार। अभी हम थोड़ा सा 15-20 मिनट्स आसन प्राणायाम डेमोन्स्ट्रेट भी करती हूँ, आप मेरे साथ कीजिए। थैंक यू एवरीवन। अगर हम लोग फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, हो सके आपके वीडियो ऑन कर दीजिए, तो कुछ अगर बताना हो, करेक्शन करना हो तो मैं करूंगी। और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स कुछ रहेंगे तो फिर हम लोग बाद में क्वेश्चन आंसर्स रखेंगे। नहीं, स्टैंडिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम। हाँ बरोबर, ओके ना. हाँ सर, प्रॉपरली विजिबल है ना? बरोबर आहे, बरोबर आहे. अच्छा. ओके। बरोबर. फर्स्ट थोड़े से सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। हमको अंदर रखिए। मेक अ फिस्ट अप एंड डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Raise. Shoulders rotation front to back. 1 2 3 4 5. Reverse. 5 4 3 2 1. A neck rotation, chin down,
स्टार्ट फ्रॉम राइट साइड, राइट से लेके पूरा सर्कल बनाना है. 3 rounds clockwise, 3 rounds anti-clockwise. Three times right से left, then 3 times left to right. Then reverse. Twisting. दोनों हाथ shoulder level, palm facing each other. The right and left alternate. 1, 2, 3. Continue. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. Reverse. And the last, side bending, just 1 feet gap between your legs. Side bending. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. Asanas. First, balancing आसन, ताड़ासन से स्टार्ट करेंगे. Feet together, एक 2-3 fingers गैप रखिए, दोनों feet parallel रखिए, fingers interlock, palms outside. Inhale, raise your hands up, heels up, stretch your body up. Maintain. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale, release. त्रिकोणासन. ताड़ासन मेनली हमारा बॉडी माइंड कंसंट्रेशन के लिए बहुत अच्छा है. बाकी बेनिफिट है हम पेरीमेनोपॉज के संदर्भ में बता रहे हैं. नाउ त्रिकोणासन, 2.5 feet to 3 feet gap, right to right side, hands in T shape, palm facing front. Inhale, exhale करते हुए स्पाइन को राइट साइड एक्सटेंड करके लैटरल बेंड मेंटेन. अगर आपको बीपी प्रॉब्लम है, ऊपर की तरफ नहीं देखना, सामने ही देखना है. वर्टिगो है, माइग्रेन है, सामने ही देखना. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Right toe straight, left toe left side. लेफ्ट साइड से सेम करेंगे. इनहेल, एक्सहेल करते हुए लेफ्ट साइड. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Relax. Warrior pose स्ट्रेंथनिंग के लिए, थाई एंड पेल्विक स्ट्रेंथनिंग के लिए, तो वॉरियर का एक वेरिएशन. पैरों का और विड्थ बढ़ाइए. 3.5 feet to 4 feet अपार्ट. राइट टू राइट साइड, पार्श्व कोणासन, हैंड्स इन टी शेप. बेंड योर राइट नी. आपका नी आपके टो से आगे नहीं जाना. दिस इज वॉरियर 2. नाउ राइट हैंड डाउन, जस्ट फिंगर टिप्स को नीचे टच कीजिए फ्लोर पे एंड लेफ्ट हैंड स्लैंटिंग में आ जाएगा. लेफ्ट पाम की तरफ देखना है. होल्ड. 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2, 1. Come back, knees straight, toes straight. Left side, same left side, left toe left side, hands in T-shape, bend your left knee. Inhale, exhale करते हुए left hand down, the right hand slanting में, upper fingers sharp. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Come back, knees straight, toes straight. Raise. एक 1 राउंड सूर्य नमस्कार का करेंगे, राइट से एक हैंड लेफ्ट से एक, 1 सेट करते हैं, एक साथ में ही करेंगे. मैट के आगे आ जाइए. 12 स्टेप्स सूर्य नमस्कार. Palms in namaste. Inhale, raise your hands up. Exhale, forward bending. Inhale, right leg back. Exhale, left leg back. Parvatasana. Knee down, chest and chin down. Ashtanga. Inhale, Bhujanga. Exhale, mountain. Inhale, left leg front. Exhale, right leg front. Inhale, back bend. Exhale, namaste. सूर्य नमस्कार में थोड़ा मतलब जो पावर योगा में करते हैं जिसे स्ट्रेंथनिंग और थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, तो एक वेरिएशन में बताती हूँ कि जाते इस समय जब हम लोग ने माउंटेन किया था उसके बजाय हम लोग प्लैंक होल्ड करेंगे. Inhale, raise your hands up. Exhale, forward bending. Left leg back. Right leg back. This is plank, Dandasana. यहाँ पे आपका कोर स्ट्रेंथ होने में मदद होती है. Knee down, chest and chin down. Inhale, Bhujanga. Exhale, mountain. The right leg front. The left leg front. Inhale, back bend. Exhale, namaste. Raise. Lying down आसन करेंगे. 2 lying down आसन. First, बैक पे सो जाइए. Twisting, पवन मुक्तासन, जो ब्लोटिंग रहता है आपका, गैसेस अगर रहेंगे तो रिव्यू करने में मदद करेगा. दोनों लेग से एक साथ में करेंगे. इनहेल, दोनों लेग्स 30 डिग्री अप. एक्सहेल, बेंड योर नीज, होल्ड योर नीज एंड knees pressed towards your chest. Maintain there. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale करते हुए legs 30 degree. Exhale down. Bridge pose. दोनों legs fold. या तो आप रिस्पेक्टिव एंकल पकड़िए या तो palms नीचे फ्लोर पे रखिए. Inhale, lift your pelvic up. कमर को ऊपर उठाना है. ये मेनली हमारे pelvic स्पाइन की स्ट्रेंथ बढ़ाने में मदद करती है. होल्ड 5 पाउंड्स. 5, 4, 3, 2, 1. Exhale down. Relax. Supine twisting.
दोनों हाथ टी शेप में, palm facing down, legs fold. Inhale, exhale करते हुए knees towards right side, opposite side देखना है. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, knees center. Exhale, knees turn to left side. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, knees center. Exhale, release. चेस्ट पे टर्न हो जाइए. भुजंगासन तो हम लोग ने सूर्य नमस्कार में किया हुआ है. एक धनुरासन करेंगे सिर्फ, जस्ट रिलैक्स. मकरासन रिलैक्सिंग पोज. मकरासन भी आपको स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करता है. धनुरासन दोनों लेग्स फोल्ड करने हैं. होल्ड रिस्पेक्टिव एंकल्स. इनहेल, चेस्ट अप, थाइज अप. ये हमारी थाई स्ट्रेंथ बढ़ने में काम आता है. बैक बेंडिंग लंग्स कैपेसिटी सुधारने में मदद करता है. बैक फैट कम करने में मदद करता है. स्पाइन स्ट्रेंथ बढ़ने में मदद करता है. एक्सहेल, रिलैक्स. चाइल्ड पोज में आ जाएंगे. जस्ट रिलैक्स इन चाइल्ड पोज. बालासन. Five, 4, 3, 2, 1. And come down. सिटिंग आसन. सिटिंग में ही 2 आसन करेंगे, फिर प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं. एक है अर्धमच्छेंद्र आसन एंड पश्चिमोत्तानासन. अर्धमच्छेंद्र आसन. दंडासन में स्प्रेड योर लेग्स. Bend your right knee. Right feet outside your left knee. Left leg forward. Spine straight. Inhale, raise your left hand. Exhale करते हुए right side twist हो जाएंगे. ये डायबिटीज में बहुत अच्छा है. डाइजेशन के लिए अच्छा है. बेली फैट कम करने में मदद करता है. 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, come back. Leg spread and leg change. Now left leg से left leg fold. Left feet outside right knee. Right leg fold. Inhale, raise your right hand. Exhale and relax. 5, 4, 3, 2, 1. Come back. Relax. The last forward bending आसन पश्चिमोत्तानासन, जो बेली फैट कम करने में मदद करता है. स्ट्रेस रिलीज करने में मदद करता है. Inhale, raise your hands. एक्सहेल करते हुए स्पाइन एक्सटेंड करते जाना है. फॉरवर्ड बेंड. ब्रीदिंग चालू रहेगा. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inhale, come up. Exhale, release. प्राणायाम करते हैं. कूलिंग वाले में भी जो कूलिंग करते हैं वो प्राणायाम हम देखेंगे. अनुलोम विलोम 3 राउंड्स. अनुलोम विलोम, शीतली, देन भ्रामरी. ये प्रणव मुद्रा है. दिस इज
प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा, जब भी हम लोग प्राणायाम करते हैं ये मुद्रा से है। स्टार्ट लेफ्ट नोस्ट्रिल से करना है, राइट नोस्ट्रिल क्लोज, 3 राउंड्स करेंगे। इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, inhale from right, exhale from left, inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left. Last round, inhale from left, exhale from right, inhale from right, exhale from left. 3. ये आप 10 राउंड्स, 20 राउंड्स, 10-15 मिनट्स तक कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम मेनली हॉट फ्लशेस, और उसके लिए मैंने बताया था आपको टंग बाहर निकालना है और उसका ट्यूब बनाना है। मुंह से सांस खींचेंगे, टंग इन, exhale from nose, normal exhalation from nose. 3 rounds करते हैं। Tongue out, inhale from mouth, exhale from nose. Tongue out, inhale from mouth, exhale from nose. The last, inhale from mouth, tongue out, exhale from nose. अभी नीलम जी जैसे है कि जिनको टंग रोल करने में प्रॉब्लम होता है, ट्यूब करने में प्रॉब्लम होता है, तो हम शीतली के बजाय शीतकारी भी कर सकते हैं कि टीथ को रखना है, मुंह से सांस खींचना है। दिस इज शीतकारी। शीतली शीतकारी दोनों हमारे बॉडी को कूलिंग करने में मदद करते हैं। भ्रामरी करेंगे लास्ट। भ्रामरी, डीप इनहेल एंड हमिंग साउंड। सिर्फ कान बंद करने हैं, मतलब ओम का ही रहता है वो। डीप इनहेल करते हुए जस्ट 3 राउंड्स, कान प्रॉपरली बंद कीजिए। Relax. Last शवासन, just 2-3 minutes. शवासन में जाइए just 2 मिनट के लिए for complete relaxation. फोकस आपके ब्रीदिंग पे रहेगा। Observe your inhalation, exhalation. Total detachment towards your thoughts.
Feel yourself more lighter, more relaxed. With every exhalation, release your deep emotions, release your all stress, tension. With every inhalation, fill your mind with positive thoughts, positive energy. With gentle body movement, come out of the Shavasana. एक साइड टर्न होके हाथ के सपोर्ट से उठ के बैठ जाइए. लास्ट एक ओमकार करेंगे. Spine straight, eyes closed, breathing. Shanti, Shanti, Shanti. Rub your palms, cup your eyes. Gently remove your hands. Slowly open your hands. Thank you, everyone. Thank you, Deepali ma'am, for a wonderful session. आपका आवाज नहीं आ. Thank you, madam. It was a wonderful session. Thank you, ma'am. Thank you so much. If anybody have questions, please ask Deepali ma'am. And I have posted. Hello. And I have posted Chat feedback box for. में feedback form. Yes, yes. And I have, yes. Deepali ma'am, thank you I have for posted feedback form. Please fill the form and send. thank you for teach. I want to say कि but मेरा जो टंक है ना वो थोड़ा ही फॉल्ट हो पाता है तो ज्यादा पी नहीं क्या करूं? वो फिर प्रैक्टिस हो जाएगा. हम लोग देखेंगे. क्लास में करेंगे. ओके ठीक है. नाइस सेक्शन. Thank you. Deepa, very nice session, very interactive. Thank छान. you. दीपा इनव्हॅलिड लिंक येते याच्यावरती. फॉर्म वरती इनव्हॅलिड लिंक येते. शुभदा जी वो लिंक ओपन नहीं हो रहा है. Ma'am, wait, इनवैलिड ma'am. लिंक को जाना. Wait, ma'am. Again, I will post, ma'am. Wait. या थँक्यू. Just a खूप minute. छान झालं सेशन दीपा. Thank you. That one. Above one. Very nice session, madam. Thank you. हो गया मैम. फॉर्म फिलअप हो गया. Thank you. थैंक यू. थैंक यू एंड बाय. Bye. अगर कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम लोग एंड कर सकते हैं.